इफ समवन इज स्टार्टिंग आउट एंड उसको उससे पहली बार इस तरह की कन्वर्सेशन हुई बहुत अच्छा लगा एंड दे वांट टू लर्न मोर अबाउट इट, कैन यू गिव सम रिसोर्सेज की ऐसे किताब पढ़ो या फिर ये वीडियो या ये मूवी आप देखो टू बिगिन विथ? Pritika, honestly, when it comes to books, I do not suggest books. I tell you the reason why. Books are personal, consumable thing. जैसे आप वो खाना खाते हो, आप कपड़े पहनते हो, वो पर्सनल होता है, आप कंज्यूम करते हो कंटेंट, ठीक है? आपका टेस्ट अलग है, मेरा टेस्ट अलग है, आपके गोल्स अलग है, मेरे गोल्स अलग है, आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। मैं आपको बोल दूँ आप पढ़ लो रिच डैड पुअर डैड, आपको फाइनेंस से कुछ लेना देना ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, आपके लिए क्या है रिच डैड पुअर डैड? नथिंग। So first, suggestions of book is very personal. But when people ask me, Shwani, what kind of books do I read? First, I tell them, know about your subject. आप किस इंडस्ट्री के हो? Know your industry. अपनी इंडस्ट्री की बुक उठाओ. Because जब आप किसी से मिलोगे, आप अपने इंडस्ट्री के लोगों से मिलोगे, आप अपनी इंडस्ट्री की बातें करोगे. So you should sound intellect there. Let's take an example. I am somebody who's into personality development. What will I do learning about mutual funds? I don't sit with such people. But yes, when it comes to soft skills, मुझे सब चीज़ें पता होनी चाहिए because people will ask me about my. So first, know your industry. Pick books of your industry. That's number one. Okay. Second thing is pick books that the genre that you're interested in. जहाँ पर reading regularly, consistently is important rather than fixing कि मुझे ऐसी. So pick your genre. जैसे मैं leisure time में, which is one book that will not irritate me and bore me. Okay, so pick that book. It can be romance, it can be mystery. Pick that book. Third thing that is extremely important whenever you're picking that book is what will I learn from this book? मेरे को क्या learning चाहिए? तो 3 तरीके की बुक आपको उठानी होती है, इंडस्ट्री बेस्ड, लर्निंग बेस्ड और हॉबी बेस्ड। जैसे इंडस्ट्री बेस में मैं सारा उठाती हूँ सॉफ्ट स्किल्स इसकी, हॉबी बेस में ऑल रोमांस, सारा रोमांटिक। फिर मुझे लर्निंग क्या चाहिए तो मैं लर्निंग वाली बुक उठाती हूँ। जैसे मुझे लेट्स टेक एन एग्जांपल स्टोरी टेलिंग सीखनी है, सो आई विल बाय स्टोरी टेलिंग की बुक। एंड वंस आई से कि बाय अ लॉट ऑफ फिक्शनल बुक्स। देखो एज ह्यूमंस वी आर स्टोरी टेलर्स, है ना? एंड जब आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हो, हम सबको पता है सुबह जल्दी उठो, कंसिस्टेंट रहो, अपने गोल्स छोटे बनाओ, बड़े बनाओ, ठीक है? सेल्फ हेल्प इज ऑल सेम, सब सेम है। हर किसी में मैं यही देखती हूँ, बी कंसिस्टेंट, स्मॉल गोल्स, बिग गोल्स, नथिंग डिफरेंस इन सेल्फ हेल्प. It does not make you imaginative. Fiction makes you imaginative, and as a human you have to expand your brain. So it's तभी हम ना movies जो होती हैं, we love movies because वो हमारा expansion of brain करती है. So I always tell people कि fiction तो जरूर पढ़ो, expand your storytelling, expand your imagining, mythology books, expand your creativity. So this is something that you should book. So if you ask me, Shivani, particular books, I do not have any particular books, but yes, I will tell you, if you are in this field, pick books like this for yourself. It really helps. You tell us your favorite books. Could be fiction. Mine is Animal Farm. Okay. I loved that book. It is an English classic book which tells about politics, and you will, and Pritika, I think I've never read such a beautiful book. इतनी सी पतली सी बुक है, एक दिन में खत्म हो जाएगी, आप वो बुक नीचे रख नहीं पाओगे। एंड यू नो व्हेन यू सी द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, यू थिंक ये तो बुक इस गवर्नमेंट पे बनी। सो इंटेंस, इट्स अमेजिंग, इट्स अ क्लासिक। सेकंड बुक दैट आई रियली लव इज लास्ट लेक्चर. It is about, there was a professor called Randy Pausch, and he was diagnosed with tumor and he had few months to live, or he lived his life full size, no crying, no कुछ भी नहीं, कैसे वो अपनी जिंदगी जिए full of happiness. You will cry like a baby when you will read that book, you know, and you'll think ये मैं कैसे चिड़ करती रहती हूँ लाइफ में. So I really like that last lecture, Randy Pausch. Another book that I loved is Trilogy of Shiva, because that made me fall in love with Lord Shiva. You know, before that I was a complete atheist. Okay. After reading that book, I fell in love with the love of the character. I am a Shiva follower today. If you ask me, he's everything to me. Okay. And that book is the reason. So when I say na mythology or fictional and imaginative, that book made me realize how beautiful. It takes you to another world. So these are 3 books that I completely love. And whenever I am कि मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं ये पढ़ती हूँ. Otherwise मैं बहुत romance पढ़ती हूँ, कुछ पढ़ती हूँ. But these 3 books are my favorite. If somebody asks me 3 books, top 3 books. बाकी ये बहुत सारी जो सेल्फ हेल्प बुक्स है, ये तो आपको जब कोई क्लास देनी होती है, बहुत अच्छा
बनना होता है कि आई एम वेरी मोटिवेशनल और Yeah. अब यू पिक फ्यू लाइंस फ्रॉम देयर एंड स्पीक, बट एवरीथिंग इज बी कंसिस्टेंट, बी काइंड, बी दिस, Hmm. एवरीथिंग इज सेम. So your attention span is still intact. See, okay, Pritika, let me tell you one fact about myself. I hate reading. Okay? मेरे को नींद आती है. Hmm. मैं 2 लाइन पढ़ती हूँ. So people think कि बहुत अच्छा है. But I read every day despite I hate reading. I tell you why. मैंने जिम ज्वाइन की because मैं इतना you being on Instagram, आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल तो क्या होता है? वही तो 1 मिनट, Hmm. 1 मिनट. सो मैं बहुत दुखी हो गई थी कि मैं रीड ही नहीं कर पाती. सो व्हाट आई डिड वाज, प्रीतिका, आई जॉइंड जिम. मैं जिम में कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करती, मैं जिम में कुछ नहीं करती, मैं जिम में पढ़ने जाती हूँ. What? यस. इवन वहाँ पे जो ट्रेनर्स वो कहते हैं मैम कुछ वेट उठा लो, कुछ मैं नहीं कर रही, मेरे को नहीं करना. आई कम हियर फॉर, आई नो माई पर्पस. I put a treadmill of 45 minutes, 1 hour. I put a book there. I take my Kindle. I put a book there. I put an inclination of 12, 3 speed. And for 1 hour, मैं वो बुक पढ़ती हूँ. मेरी वो बुक खत्म. And I make sure कि मेरे को 10 चैप्टर पढ़ना है इस बुक के. 10 चैप्टर वो 50 मिनट में हो, आधे घंटे में हो जाए, 20 मिनट में हो जाए, 1 घंटा ले, वो डिपेंड करता है 10 चैप्टर पे. कभी-कभी 15 मिनट में हो जाता है, मैं उतर जाती हूँ ट्रेडमिल से. Hmm. So this is my fixed pattern to read, and believe me when I say this, I completed 5 books like this. Wow. उससे because when you are off treadmill, you're so distracted. तो मेरा फोन ही नहीं खत्म होता था. But मैं पहली बार सुन रही हूँ, पता है इस तरह का हाँ. चीज. तो मैंने जिम ज्वाइन ही पढ़ने के लिए किया. मैं रोज न्यूज पढ़ती हूँ बिकॉज आई गो टू जिम, और मैं ट्रेडमिल पे रखती हूँ अपना फोन, उसमें मैं टॉप न्यूज डालती हूँ एंड आई रीड द न्यूज. आई डोंट लिसन टू सॉन्ग्स बिकॉज आई एम वेरी बैड एट लिसनिंग टू सॉन्ग्स. मुझे समझ ही नहीं आते कौन सा गाना अच्छा लग रहा है, कौन सा गाना बुरा लग रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं पाती. सो एंड अप लिसनिंग 2-3 songs only. So I read news first, top 10 news of the day. Then I put my book. I read the book. It take me 1 hour. And everybody in the gym ना वो सोचते होंगे ये आती है, ये रखती है, पढ़ती है, चली जाती है. But that's my purpose. मुझे कोई बॉडी नहीं बनानी, मुझे कोई मसल नहीं बनानी, मुझे कुछ नहीं करना. This is such a great example of जिसको करना होता है ना वो कर लेता हाँ, है. so that was my aim because I know, and this is the need of the hour, the profession I am in. I have to read. Yeah. I just cannot sound dumb. So वो मैं इतना distracted रहती थी. Then finally one fine day मैंने किया. So there are lot of वहाँ ट्रेनर्स आते हैं, मैम पर्सनल ट्रेनर ले लो, मैम आप तो आते हो, आप सिर्फ ट्रेडमिल करके चले जाओ तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं. मैं अंदर अंदर सोचती मुझे पता है कुछ नहीं हो रहा, बट मेरा पर्पस जिम ज्वाइन करने का was to concentrate, to just stick. So मैं walk भी कर लेती हूँ. I burn 300-400 calories also. I read also, and then where I'm very happy. I've had a productive hour. This hour is productive. So anybody who is bad at reading, join this and try this trick. I'm telling you, it's wonderful, wonderful. I've been doing for 6 months now. That's very interesting क्योंकि मैंने पहली बार सुना है कि कोई जिम जाता है बुक पढ़ने के लिए. Anyway, it's a way of forcing yourself to do something. Yes. And उसके लिए एक चीज को दूसरे से कनेक्ट कर दो कि वो हैबिट फॉर्म हो जाए. एटॉमिक हैबिट्स में Because see, when you're on treadmill ना प्रीतिका, yeah. आप चलते रहते हो. आप डिस्ट्रैक्ट कहाँ होते हो? जहाँ आप रुकते हो, पॉज करते हो, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो. ट्रेडमिल में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं. बट आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ रीडिंग इन अ ट्रेडमिल. मेरे को Try. चाहिए कि शांति से बैठ के पढूं. मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं, मतलब मेरे लिए चलना डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा. प्रीतिका ट्राई करके देखना. इट वर्क्स वंडरफुली वेल. मुझे भी ऐसा लगता था. बट आप ना उस डिस्ट्रैक्शन से हट जाते हो. जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, नोटिफिकेशन, ये इसने बुला लिया, या एक रील ही देख लेती हूँ, वो नहीं होता. यू आर इन अ मोमेंटम. आप चलते हो ना, व्हेन योर बॉडी इज इन मोमेंटम, यू कीप ऑन रीडिंग. ट्राई करके देख. I'll give it a try. I'll definitely give it a try. हाँ. Last question, Shivani. Yes. What is the best advice that you have got?